اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو سے صراط مستقیم کے نئے پروگرام کے ساتھ سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے، اور آج کا پروگرام سیدۃ النساء العالمین، خاتون محشر، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ معصومہ زکیہ راضیہ مرضیہ طاہرہ مطہرہ محدثہ محدثہ عذرا بطول بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہے۔ میں تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد اس بڑی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین کی صاحبزادی، صاحب حل عطا کی زوجہ، حسنین شریفین سمیت 11 اماموں کی ماں، قیام قیامت تک سادات کرام کی مادر گرامی کی ولادت باسعادت کی مبارکباد امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، علماء اعلام، سادات کرام، مؤمنین و مومنات، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی اس ولادت کی عید کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، بیماروں کو شفا۔ ناظرین و ناظرات، بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام حضور پاک کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ حضور کی کوئی اور صاحبزادی نہیں تھی، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور ان کا نام نامی فاطمہ تھا۔ 3 بیٹیاں جو حضور کی بیٹیاں معروف اور مشہور کر دی گئیں، وہ لے پالک تھیں، ربائب تھیں، وہ پالی ہوئی بیٹیاں تھیں۔ شرفاء جب بیٹیاں پالتے ہیں تو ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو انہی شرفاء کی نسبت سے ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ان کی حقیقی صلبی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے درجات کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو اپنے تئیں کمزور کرنے والوں نے افسانے گھڑے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان سب سے ایک سوال ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو جب آیت آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گھر میں بیٹا ہو تو نعمت، بیٹی ہو تو رحمت، تو پھر رحمت کا صیغہ سنگولر مفرد
کیوں آیا پلورل جمع کیوں نہیں آیا؟ اگر بیٹیاں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو حضور کا لقب رحمات للعالمین ہونا چاہیے، نہ کہ رحمت للعالمین۔ پھر آئے مودت میں جب قربہ کا تعارف فاطمہ الزہرا کے وجود کے ساتھ کرایا گیا تو قربیات نہیں آیا، قربہ آیا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ بیٹی ایک ہے۔ پھر اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ تھیں تو جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو وہ اور ان کی اولادیں اس میں شامل کیوں نہ ہوئیں؟ جب میدان مباہلہ میں حضور اپنے خاندان کو لے کے گئے، حکم بھی تھا نساءنا و نساءکم، تو اگر وہ تینوں مر بھی گئی تھیں تو ان کی اولادیں تو تھیں۔ اگر فاطمہ کی اولاد لے جائی جا رہی ہے تو ان کی اولادیں بھی لے جائی جاتی۔ جب بی بی پاک نے حق کا مطالبہ کیا تو اگر وہ خود موجود نہیں بھی تھیں تو ان کی اولادیں ساتھ میں شامل اور شریک کیوں نہ ہوئی مطالبہ حق کے فدق میں؟ جب بی بی زینب و ام کلثوم 36 شاروں میں سے گزری تو ان میں ان 3 کی اولادیں اس قافلے کے ساتھ شریک کیوں نہ تھی؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی بیٹی ایک ہی تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب حضور کی ایک بیٹی کو ہی راضی نہ کر سکے تو امت مسلمہ والے 4 کو کیسے راضی کر پاتے؟ ایک بیٹی کا تو اسٹیٹس یہ ہو کہ لولا علی ما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، تو دوسری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے کف ہی کف ہوں۔ ایک کی بیٹی کے بچوں کے لیے تو حضور سواری بھی بن رہے ہیں، وہ بچہ سوار ہو جاتا ہے بیٹی کا تو سجدے کو طول بھی دے دیتے ہیں، اور دوسری صاحبزادیوں کے لیے جن کا فرض کیا گیا ہے ان کی اولادوں کو نہ کبھی کندھوں پہ اٹھایا، نہ ان کے لیے کبھی سواری بنے، اور نہ ہی وہ کبھی پشت پہ سوار ہوئے کہ تسبیح پڑھائی جائے۔ ایک بیٹی کے دروازے پر تو 9 مہینے تک انما یرید اللہ کی تلاوت ہوتی رہی، اور دوسری جو صاحبزادیاں تھیں ان کے بارے میں حضور کریم نے کبھی نہ آیت تلاوت کی ان کے دروازے پر۔ ہم اس وقت المہدی ٹی وی سے لائیو پروگرام میں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں۔ جو بھی ہمیں کال کرنا چاہیں وہ 8489992263 پہ کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لائیو کال میں کچھ کہنا چاہیں گے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام صراط مستقیم نمبر 9 خاتون قیامت کی بلیسنگز لینے کے لیے ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ کال مسلسل ڈراپ ہو رہی ہے، دوبارہ زحمت فرما لیں، جن کی کال ڈراپ ہو جائے دوبارہ کال کر لیں 8489992263 لائیو کال کر لیں آپ۔ اس وقت جناب سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کے سلسلے میں المہدی ٹی وی سے لائیو پروگرام جاری ہے، اور ہم بی بی پاک کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ بڑی عید آ گئی کہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کی شب پہنچنے کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، جی مبارک سسٹر، آپ کو بہت بہت فاطمہ الزہرا کا جشن ولادت پہ جو آپ دے رہے ہیں۔
اور یہ کوشچن میرے ابھی رہے تھے ذہن میں، تو بلکہ میں ایک دو کرنا بھی چاہی تھی، تو آپ نے تو پہلے سے ہر بات کا جواب دے دیا، ماشاء اللہ، مہربانی، شکریہ۔ آپ کون فرما رہی ہیں بہن؟ میں پینسلوینیا سے عابدہ بول رہی ہوں۔ عابدہ بہن، خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو اس عظیم عید کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری بلیسنگ سے نوازے، کیونکہ یہ بہت بڑی عید ہے ہمارے لیے۔ یہ اس بی بی کی ولادت کا دن ہے کہ جو علت غائی رسالت و امامت، انشاءاللہ بی بی پاک کا واسطہ اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ 1 منٹ کے لیے ہولڈ فرما لیجیے، ایک اور کال ہے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو دوبارہ کال فرما لیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ عابدہ بہن نے کوئی سوال کرنا تھا، انہوں نے مبارک دی ہے۔ ایک اور لائن پر کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے، بہرحال آپ کال فرما سکتے ہیں، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو سے ہم اس وقت آپ سے لائیو مخاطب ہیں، اور آج ہم عزت حاصل کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی کی ولادت کا جشن ہر جگہ منایا جا رہا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، عرش پہ، فرش پہ، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں۔ ایک ہم کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ صراط مستقیم کا نواں پروگرام بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کے بارے میں جاری و ساری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پہلے سے مبارک، بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ چھوٹا سارا قطع تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیے۔ فلک پر جو دیکھا کہ ایک نور ہے۔ جی ابھی ہولڈ کیجئے گا، آپ دوسری لائن ہولڈ کیجئے گا، ابھی یہ آنٹی کچھ پڑھنا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی کال شامل کریں گے۔ ہولڈ پر ہے، بسم اللہ آپ پڑھیے۔ جی فلک پر جو دیکھا کہ ایک نور ہے، جی نور خدا ہے کہ نور محمد۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھا کہ مشکات نور محمد، نظر آئے علی کہ نور علی نور ہے۔ ماشاء اللہ، لپیٹے ہیں دامن میں دو نور کو، سبحان اللہ۔ کون مستور ہے، اسی کے صدقے میں ہے کر دیا ہر با اور الحاتمہ۔ یہی فاطمہ ہے، یہی فاطمہ، یہی نور ہے، بس یہی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے ساتھ پائندن باغ کی محبت پروردگار اس طرح جیسا اس کا حکم ہے وہ شعور عطا کرے۔ الہی امین، الہی امین۔ سیدہ عفت صاحبہ نے ہمیں کال کی نیو جرسی سے، اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے صاحبزادے کو، گھر والوں کو بہت عزت سے سرفراز کرے۔ صدقہ پنجتن پاک، صدقہ بی بی پاک کا اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرہ زیارت بار بار نصیب کرے۔ بہت خوبصورت کال تھی اور بہترین کلام پڑا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سب کو بتائیے گا کہ ہمارا پروگرام 5 بجے تک جاری ہے، اگر کوئی اور بہن بھی شامل ہونا چاہے تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ جی جناب۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، اور میرا نام جی بہت پاپولر ہے، بہت، اور میرا نام پرویز احسن ہے، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں، اور آپ کو جو ناظرین ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور فیضاب ہو رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا نساء العالمین کی اس ولادت کے مبارک موقع پر آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پرویز احسن صاحب نے ہمیں کال کی ہے نیو یارک سے، اور آپ سب ناظرین و ناظرات کو بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا
मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा के विलादत के मौके पर, अयाम विलादत के मौके पर, आज शब विलादत है। इन्होंने आप सबको मुबारकबाद दी है। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। बहुत शुक्रिया परवेज हसन साहब, आप हमारे जी आपसे जी फरमाइए। मेहरबानी कोई आप ऐसी दुआ या अमल बता दीजिए जिससे हम सब की मुश्किलात दूर हो जाए बीबी फातिमा के सदके में। बहुत शुक्रिया, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। या फातिमा ज़हरा अगीसीनी, ये जुमला मैंने बचपन में अपने ज़माने के उस्ताद, बचपन के उस्ताद से सुना था और इसको मैंने आजमाया है। या फातिमा ज़हरा अगीसीनी, ए फातिमा ज़हरा मेरी मदद को पहुँचिए। ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इस अमल के साथ बीबी पाक मदद को पहुँचती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब परवेज़ हसन साहब, आपको भी ढेर सारी मुबारक हो। नाज़रीन नाज़रात, हमारा सिलसिला गुफ्तगू बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में जारी व सारी है। न्यू जर्सी के स्टूडियो से सिरात मुस्तकीम के नए प्रोग्राम के साथ अलमहदी टीवी से आपका ये खादिम हाजिर खिदमत है। हमें 5 बजे क्योंकि आगे सफ़र करना है अल कुरान सेंटर की तरफ, जहां आज जश्न शब विलादत बीबी पाक रखा गया है। लिहाजा हम 5 बजे तक आपकी कॉल्स भी ले सकते हैं, आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम। टीवी का नंबर नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने फोन पर उठा लीजिए मेरा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप लाइव हैं? आप लाइव हैं? हाँ मैं लाइव पे हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी मौलाना साहब, मैं आपको एक ये हज़रत का आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब आपको और मौलाना वसीम साहब और डॉक्टर दलील और मिस्टर रिफत साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इसमें वो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अल्लाह उन सबको और आप सबको इसका अजर देगा और हम सबको अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका दे रहे हैं और अल्लाह आप सबकी राज करे और इसमें बरकत दे। अच्छा, आज माशाल्लाह हज़रत फातिमा की विलादत का जश्न हमारे अल कुरान सेंटर में है। तो मैं सबको दावत देना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे अल कुरान सेंटर में आइएगा और शुक्रिया का मौका दें और जश्न में शिरकत करवाइए। तो और एक सवाल मौलाना साहब आपसे मैं करना चाह रही हूँ जी। तो ये बताइए कि हमारे जो है बच्चे और बच्चियाँ कौन से असूल हैं जो कौन से असूल अपनाएं जो जन्नत में आप बन जाएं? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये सिस्टर अतिया जहरी साहिबा ने हमें कॉल की है अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया से और ये सवाल फरमा रही हैं। पहले तो इन्होंने मुबारकबाद दी है सबको, मेरी तरफ से भी इनकी तरफ से भी आप सब एक मरतबा फिर इस अजीम ईद की मुबारकबाद को कबूल कीजिए, क्योंकि ये वो ईद है कि जिसमें अबतर का जो ताना था उसका अमली तौर पर अल्लाह ने जवाब दिया। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये इब्न वाइल, अबू लहब जैसे, अबू जहल जैसे प्रेजुडिस मुतासिबीन ये कहते थे कि इसकी औलाद तो है कोई नहीं। जब ये पैगंबर इस दुनिया से चला जाएगा तो खुद ब खुद इसके अल्लाह का पैगाम महव हो जाएगा। तो अल्लाह की ज़ात ने बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की सूरत में कौसर अता फरमाया और कसरत औलाद की नेमत से हुजूर को नवाजा। गोया बीबी पाक की जो विलादत बासआदत है वो इब्न वाइल, अबू लहब, अबू जहल और मुतासिबीन के मुंह पर एक तमाचा था। इसलिए भी इस ईद सईद को ज़बरदस्त अंदाज में मनाना चाहिए
کہ اس سے ہمارے نبی کریم کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا، اور جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کی نسل ایک صاحبزادی سے چلائی، بلکہ ایک بہت بڑے چیمپئن جو ہیں دور حضور کے، انہوں نے جب اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، جب وہ بیٹی کو دفن کر رہے تھے تو عمر بھر وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے وہ ایکشن اپنی مقتولہ مدفونہ بیٹی کا نہیں بھولتا کہ جب میں اسے زندہ درگور کر رہا تھا تو وہ معصومیت کے ساتھ اپنا ہاتھ میری داڑھی پہ لے آ کر کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کی ریش میں مٹی لگی ہوئی ہے، میں اسے دفن کر رہا تھا اور وہ میری داڑھی سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ اس قسم کے چیمپئنز کو یہ جواب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی امین ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ عطیہ زیدی صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کے ماحول میں ہماری بچیاں بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی کون سی سیرت کو اپنائیں کہ ان کے گھر جنت مآب بن جائے؟ تو آج کی بچیوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما کی سادگی کو، ان کے اخلاص کو، ان کے انداز کو ایڈاپٹ کریں۔ ایک کال ہم لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسز زاہد جعفری بات کر رہی ہوں نیو جرسی سے۔ جی میرا کوشچن ہے آج کے پروگرام کے لیے۔ جی پہلے تو یہ ہے کہ آپ پڑھنے والوں کو، خاص طور پہ مولانا صاحب کو، سب سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو بی بی کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہن بہت مبارک ہو۔ جی، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ لقب ام ابیہ جو ہے، لقب جو ملا تھا ام ابیہ کا میری بی بی کو، وہ میری بی بی کو کس موقع پہ یہ لقب عطا فرمایا گیا؟ بہت شکریہ مسز زاہد جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام صراط مستقیم نمبر 9 میں شامل ہوئیں، آپ نے کال فرمائی۔ یہ پروگرام خاص ہے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں۔ آپ بات کرتی رہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں، عابدہ بہن نے ہمیں میری لینڈ سے کال کی تھی، پینسلوینیا سے، ان کی کال بھی ڈراپ ہو گئی تھی، اگر وہ ہمیں جوائن کر رہی ہوں تو وہ بھی کال فرما سکتی ہیں۔ مسز زاہد جعفری صاحبہ کا جو سوال ہے کہ بی بی پاک کو ام ابیہ کا لقب کب اور کیسے ملا؟ بی بی کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ام ابیہ یہ اس وقت ملا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے خیال کی ٹیک کیئر کرنے میں، لک آفٹر کرنے میں جناب سیدہ نے ریکارڈ بیٹ کر دیے، تو حضور نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہ، یعنی اگر میری ماں بھی آج زندہ ہوتی تو وہ بھی اس سے زیادہ خدمت میری نہ کر سکتی جو خدمت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے میری کی۔ اور ام کے معنی ایک اصل بھی ہے،
रूट, क्योंकि नस्ल और असल पैगंबर की बीबी फातिमा से चली है, इसलिए भी बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को उम्मु अबीहा कहा गया। हुजूर का एक लक़ब उम्मी भी है, मंसूब इलल उम। तो कायनात में ये वाहिद बेटी है जिसको दो जहां के सरदार जैसे बाप ने मां कहा है। ये नहीं कहा अल फातिमा तो मिस्लो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां की मिसल है, ये नहीं कहा। अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा नस्ल की अमीन होने में, लुक आफ्टर करने में, ख्याल रखने में अपने बाप की मां शुमार होती है। ये पैगाम आज की बच्चियों को देना चाहिए जो मगरबी माहौल में रंगने के बाद बाप या मां की बिल्कुल कदर नहीं करती, खास तौर पे जब उनकी शादी का मौका आता है तो उन्होंने पेरेंट्स को शामिल करने की बजाय अपने ईगोटिज्म को शामिल करना शुरू कर दिया। कायनात के सैयद और सरदार की बेटी, कायनात की औरतों की सरदार अपने बाबा को बाकायदा इसमें शामिल कर रही, और बाबा की जो लुक आफ्टर बीबी फातिमा ने की वो आज की बच्चियां तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारे साथ एक कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम, मैं अनीस हैदर बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी जनाब। हेलो जी, अनीस रजा साहब। अनीस हैदर बात कर रहा हूँ। अनीस हैदर साहब जी सर, कैसे हैं जनाब? अनीस भाई खैरियत से? अल्लाह का एहसान है, शुक्र खुदा का, परवरदिगार का। वो मैंने वो पैसे भिजवा दिए हैं और उस पर शायद आपको कल या परसों इंशाल्लाह मिल जाएंगे, मेंबरशिप का था। और दूसरी बात यह है कि मेरा भी ये सवाल है, अगर मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी इरशाद फरमाएं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइव हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इन्ना तैना कल कौसर, तो इसमें जो कौसर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उससे मुराद है वो हौज़े कौसर है या कोई और मफहूम है इसका? जी ठीक है, मैं अभी अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब अनीस हैदर साहब। हमें हाँ, दूसरा एक और सवाल और है। हेलो जी फरमाइए। हाँ, दूसरा ये सवाल वो ये है कि इन्ना ज़ल्ना फी लैलतुल क़द्र, जी जी, लैलतुल क़द्र जो है वो रात को कहा गया है और उसमें अव्वल रमजान के महीने में बताया जाता है कि लैलतुल क़द्र 19वीं शब है या 23वीं शब है या 21वीं शब है या 21वीं शब है। ठीक है सर, लेकिन हम मुबारक करते हैं लैलतुल क़द्र से जनाब शहज़ादी कौनैन से, तो इसमें क्या राब्ता है? बहुत मैं अभी अर्ज करता हूँ। बहुत खूबसूरत सवाल है दोनों। मैं दोनों सवालों का जनाब अनीस हैदर साहब अभी सवाल करता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अल महदी टीवी के लिए डोनेशन अरसाल किया है। बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत के दिन है। मैं अपने तमाम भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अल महदी टीवी को दिल खोल कर अतियात दें, मेंबर बने, $1 पर डे की मेंबरशिप भी लें, इससे ज़्यादा भी अगर कर सके, क्योंकि ये चैनल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान की वकालत कर रहा है। और इंशाअल्लाह आपसे तवक्को है कि आप अपने इस टीवी चैनल को तक़वियत देंगे। अनीस हैदर साहब ने मुबारकबाद के साथ ये सवाल किया है। पहला सवाल ये है कि कौसर का माना क्या है? तो ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि कौसर से मुराद खैर कसीर है, कौसर से मुराद औलाद कसीर है, कौसर से मुराद कसरत औलाद पैगम्बर है, कसरत सादात है, और कौसर का असल मफहूम ज़ाते मुबारके फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम है। इसकी दलील ये है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर,
जवाब जो दिया गया कौसर अबतर के मुकाबिल पे है। अबतर का ताना मुशरिक देते थे और कौसर की इनायत कुदरत की तरफ से हुई। औलाद कसीर पैगंबर इससे मुराद है, और इससे मुराद यकीनन हौज़ कौसर नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हौज़ कौसर इन्हीं के ख़ानदान का है। साक़ी कौसर खुद इनके शौहरे नामदार हैं। जहाँ तक सूरतुल क़द्र का ताल्लुक है, बाज़ कुरान की आयतें और सूरतें वो होती हैं कि जिनमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 70 मानी पिन्हा होते हैं। लिहाजा ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि लैलतुल क़द्र से मुराद वो शबहाए क़द्र भी है, और इससे मुराद वजूद पुरबरकत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम भी है। और उसकी वजह अर्ज़ करता हूँ, जैसे लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ, कुरान सामित के नुज़ूल का वक्त और मरकज़, महवर, जगह, टाइम लैलतुल क़द्र है, वैसे ही क़यामत तक कुरान नातिक के नुज़ूल का, वुरूद का मरकज़ बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम है। तभी तो बीबी को बाकायदा रिसालत व इमामत और कायनात की प्रकार के दायरे का महवर व मरकज़ नुक्ता करार दिया गया। यही वजह है कि बीबी पाक जब चली थी तो रिसालत व इमामत के बीच में चली थी, ताकि मरकज़ियत बरकरार रहे। जब अल्लाह ने तारुफ भी कराया तो फरमाया हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, फातिमा के शौहर, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे। मरकजियत है फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम पर। बहुत शुक्रिया जनाब अनीस हैदर साहब, हमें आज कॉल आई हैं। बहन आबिदा बार बार हमें कॉल करती रही, कॉल ड्रॉप होती रही। अब अगर वो लाइव कॉल करना चाहें तो वो कॉल फरमा सकती हैं। इफ़त ज़हरा साहिबा ने न्यू जर्सी से हमें कॉल की, उन्होंने बीबी फातिमा के बारे में बेहतरीन कलाम हमें सुनाया। आप कलाम भी सुना सकते हैं। परवेज़ अहसन साहब ने मुबारकबाद भी दी और सवाल भी किया। या फ़ातिमतुज़ ज़हरा अगीसीनी का इस्तिग़ासा मैंने उन्हें बताया। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरी ये कॉल ड्रॉप हो गई थी। आबिदा बोल रही हूँ, दोबारा से कॉल की है मैंने। फरमाइए जी। मुझे क्वेश्चन तो अब कोई नहीं आपसे करना, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे भी जहन में आ रहे थे। आपने वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में लोग जो बातें कहते हैं कि भी इतनी थी, तो उसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। और फिर एक और है, उन्होंने जो वो सूरत कौसर के बारे में वो भी आपने जवाब दे दिया। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा ये सब कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। ये बीबी की शान में अगर है आपके पास टाइम तो मैं जी जरूर पढ़ दूं। पढ़े बिस्मिल्लाह, कोई बात जी। अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, और बेटी को साथ लाए इस वास्ते रसूल, नजरानियों की मात है ज़हरा के हाथ में। सुभान। कहने लगे हुसैन ये रुमाल बांधकर कि जाहुर की नजात है ज़हरा के हाथ में। माशाअल्लाह। जिस घर से चल रहा है ज़माने का निज़ाम, उसकी माशियात है ज़हरा के हाथ में। सुभान। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहन आबिदा हमारे साथ शामिल हुई, हमारी बड़ी मुआविन है अल महदी टीवी की, अल महदी फाउंडेशन की। अल्लाह ताला आपको बीबी पाक के सदक़े में बहुत नवाजे, इज़्ज़त हो, तकरीम हो, वक़ार हो, रिज़्क़ हो, सेहत हो, एहतराम के साथ अल्लाह आपको नवाजे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रात, आज आपको अतिया ज़ैदी साहिबा ने दावत दी है कि अगर आप आ सकें अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने रफ़त मिर्ज़ा साहब का भी जिक्र किया, डॉक्टर अंदलीब का भी जिक्र किया, मौलाना वसीम अब्बास का भी, ये सब भी वहाँ पर होंगे इंशाअल्लाह।
आज बहुत बड़ा मरकजी जश्न है जैदी फैमिली की तरफ से। अतिया जैदी साहिबा, डॉक्टर शान रज़ा जैदी, जमजम जैदी और उनकी हमशीरगान, जमजम की हमशीरगान अतिया जैदी साहिबा की बेटियों की तरफ से, ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से आज बहुत बड़ा जश्न है इंशाअल्लाह, और उसमें मैं वहाँ पर खिताब करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग शिरकत नहीं कर सकते वो जहन में रखें कि इंशाअल्लाह आज इस जश्न को रिकॉर्ड किया जाएगा और कल बशर्ते ज़िंदगी कल रात को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 बजे इस जश्न को अल महदी टीवी पर रिले किया जाएगा। ये हमारे हुसैन रज़ा सल्लमहु जिम्मेदारी निभाएंगे और इसको इंशाअल्लाह रिकॉर्ड भी करेंगे और ये कल रिले भी करेंगे। और कल इतवार के दिन अलबत्ता याद रखिएगा लाइव प्रोग्राम आएगा 4 बजे। सबसे पहले तो तजवीदुल कुरान का दर्स होगा इंग्लिश में, बच्चों बच्चियों को मुस्तैद करें, कागज़ कलम कंप्यूटर उनके हाथ में दें, उनसे कहें कि वो नोट्स बनाएं। और इंशाअल्लाह 5 बजे इंग्लिश में बीबी फातिमा के बारे में गुफ्तगू होगी और 6 से 7 बजे उर्दू में शुआरा और तकरीर होगी। मैं भी इंशाअल्लाह खिताब करूँगा। 7 बजे कल ये जश्न ख़त्म हो जाएगा। 4 से 7 कल नोट कर लें अल महदी टीवी पर लाइव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum, Maulana Sahab. What's up? This is Daniel Kirmani speaking. How many sisters did brothers did Bibi Fatima to Zahra have, and when did they die? Very good. Daniel, thank you very much. Daniel Kirmani is calling us and he is asking how many brothers she got. One of the brothers she got was Ibrahim alayhi salam, and he was alive when Mubahala happened. One other brother was Abdullah named Tahir, and they also Qasim. They were died before time when they were child. In their childhood, all of them they died. It's very interesting question. May Allah bless you, Daniel, and may Allah give more tawfiq to you to understand Islamic studies and lifestyle of Fatima. Say my salam to your family members. दानियाल ने हमें कॉल की, दानियाल किरमानी ने, और उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर की है। जो भाई हैं बीबी पाक के, ये जो अबुल कासिम की कुनियत है हुजूर की, इसी वजह से है। ताहिर भी नाम दर्ज किया गया और ख़ास तौर पर इब्राहीम मारिया क़िब्तिया के जो फर्जंद थे वो उस वक्त ज़िंदा थे जब मुबाहला हुआ। मुबाहला में हुजूर उनको लेकर नहीं गए बल्कि फातिमा की औलाद को लेकर गए, ताकि दुनिया के लिए एक सनद हो जाए कि दुनिया जब भी कंपैरिजन करना चाहे तो समझ ले कि जब नबी का सुलभी बेटा फर्जंद रसूल जब बतूल के बेटों का मुकाबला नहीं कर सकता तो गुलामजादों को अली और बतूल के फर्जंदान के मुकाबिल पर न ले आना। मैं बल्कि गुजारिश करूंगा अपने अहले सुन्नत के भाइयों से, बहनों से भी कि बीबी फातिमा ज़हरा तो उनके लिए भी खातून जन्नत हैं, उनके भी रसूल की साहिबजादी हैं। तो इनके लिए बाकायदा मसाजिद में, मराकिज़ में बर्थ पार्टीज रखें, बर्थ एनिवर्सरीज के प्रोग्राम रखें, ताकि सीरत फातिमिया को बयान किया जाए और लोग सीरत फातिमिया से दर्स हासिल करें। नाज़रीन नाज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मिसेस जाहिद जाफरी साहिबा भी शामिल हुई थी। उन्होंने उम्मु अबीहा के बारे में सवाल किया। अनीस हैदर साहब ने कौसर का माना और लैलतुल क़द्र की तफसीर का सवाल किया। मैंने अर्ज़ किया कि लैलतुल क़द्र से मुराद शब क़द्र भी है और इससे मुराद वजूद फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम भी है। जिस तरह मरकज़ियत क़द्र को कुरान सामित की तरफ है, उसी तरह मरकज़ियत बीबी फातिमा को अहले बैत इस्मत व तहारत की बाबत है। आज
हम उस बीबी की विलादत के जश्न के तौर पर हाजिर खिदमत हुए हैं जिनका बाप रहमतुल लिल आलमीन होते हुए एहतराम में खड़ा होता रहा, जिनका शौहर कभी उन्हें पुष्ट करके न चला, जिनका एहतराम हसनैन जैसे बेटों पर भी वाजिब था, जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। क़यामत के दिन जब बीबी की सवारी आएगी तो अहले महशर को एहतराम और तकरीम के पेश नज़र सर झुकाने और आंखें बंद करने का हुक्म होगा। एक हम कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा अनीस सदर बात कर रहा हूँ आपसे। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सवाल का जवाब दिया और कसीदे के चंद अशार में पेश करना चाहूँगा। जरूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर अनीस सदर साहब फरमाइए। जी जी, मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन सूरे कौसर का नाम है ज़हरा। सुभान अल्लाह। अमीन सूरह कौसर का नाम है। सूरह कौसर का नाम है ज़हरा। अमीन सूरह कौसर का नाम है ज़हरा। बकाए नस्ल पैगंबर का नाम है ज़हरा। बकाए नस्ल पैगंबर का नाम है ज़हरा। मैं उसकी मदह में कैसे कलम को जुम्बिश दूं। सुभान अल्लाह। मैं उसकी मदह में कैसे कलम को जुम्बिश दूं। हदूद फिक्र से बाहर का नाम है ज़हरा। सुभान। हदूद फिक्र से बाहर का नाम है ज़हरा। एक कतरे की मानिंद इस्मत मरियम। एक कतरे की मानिंद इस्मत मरियम। तहारतों के समंदर का नाम है ज़हरा। सुभान। तहारतों के समंदर का नाम है ज़हरा। बकाए नस्ल पैगंबर का नाम है ज़हरा। ये एक गोशा ही काफी है मनकबत के लिए। एक गोशा ही काफी है मनकबत के लिए। हसन हुसैन की मादर का नाम है ज़हरा। सुभान सुभान। हसन हुसैन की मादर का नाम है ज़हरा। न होती ये तो न होती हिदायत निस्वा। न होती ये तो न होती हिदायत निस्वा। कुलंबिया के बराबर का नाम है ज़हरा। कुलंबिया के बराबर का नाम है ज़हरा। अमीन
सूरे कौसर का नाम है ज़हरा, बकाए नस्ल पैगंबर का नाम है ज़हरा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे अनीस हैदर साहब जो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से कसीदा पढ़ रहे थे बीबी पाक फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में। बकाए नस्ल पैगंबर का नाम है ज़हरा। भाई अनीस हैदर साहब कुछ और इरशाद फरमाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और सवाल था मेरे ज़हन में। जी फरमाइए। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं जी फरमाए, पूछिए। हाँ, एक और सवाल था मेरे ज़हन में, अगर आप जी जी के पास वक्त हो तो वक्त है करता चलूँ। जी वक्त है। देखिए, जब हम मुबाइला के बारे में बात करते हैं, अमूमन उलमाए किराम भी इस सिलसिले में काफी तकरीर करते हैं। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ मैंने बहुत फायदा उठाया है। मेहरबानी। मोबाइले में जब राहिब आए थे और मोबाइले की बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सूरतें देख रहा हूँ कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए। तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात ये आती है, वो ये है कि क्या उन राहिब ने, ईसाई राहिबों ने पहले रसूल खुदा को नहीं देखा था? पहले यकीनन इमाम हुसैन इस्लाम को भी देखा था, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी देखा था और हजरत अली अलैहिस्सलाम की भी उन्होंने ज़ियारत की थी, सबको देखा था। लेकिन फिर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि मैं ऐसी सूरतें देख रहा हूँ। आप तवज्जो कर रहे हैं इस बात पे? जी जी जी। हाँ, तो मैं सिर्फ इस नुक्ते पे आपको लाना चाहता हूँ। बहुत नुक्ता अजीम है जी। उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी सूरतें देख रहा हूँ कि अगर वो ये कहें, अगर वो हाथ उठाएं और वो कहें कि ये पहाड़ अपनी जगह से खसक जाए तो खसक जाएगा। तो जबकि वो देख चुके थे सबसे पहले यकीनन, लेकिन शहजादी कौनैन साथ थी, वो बिल्कुल हिजाब में थी। जी। तो आखिर क्या वजह है कि उन्होंने ये बात कही कि वो हसनैन शरीफैन के बारे में कह रहे थे, क्योंकि बीबी पाक का चेहरा तो छुपा हुआ था और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देख कर आए थे, मौला अली से वो मिलकर आए थे चंद दिन पहले, या कुर्ज़ इब्न अलक़मा, अबू हारसा वगैरह। तो ये जो उन्होंने कहा था कि वल्लाहि इन्नी लरअयतु वुजूहन लौ सअलल्लाहु अन युज़ील जबलन लअज़ालहुल्लाह, खुदा की कसम मैं इस पैगंबर के साथ ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर वो अल्लाह से कहें कि अल्लाह पहाड़ हटा दे तो अल्लाह उनका कहा नहीं टालेगा और पहाड़ को हटा देगा, पहाड़ खिसक जाएंगे। ये बीबी फातिमा या मौला अली या रसूल पाक के बारे में नहीं, बल्कि हसनैन शरीफैन के बारे में। अच्छा 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 अच्छा, अगर वो कहें तो? जी, अगर कहें तो बिल्कुल। और यही वजह है कि वो तो ये कह के विड्रा कर गया और उसने कहा कि मैं और मेरी कौम मुबाला नहीं करेगी। और हुजूर ने फरमाया फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक लौ तबाहलू लमुसिखू क़िरदतन व खनाज़ीर, अगर ये नसारे नजरान मेरे अहल बैत के साथ मुबाहला कर लेते तो अल्लाह इनकी केमिस्ट्री को बदल देता, ये इंसान न रहते बल्कि ये खिंजीर या बंदर बन जाते। हमने एक नतीजा निकाल लिया कि वो तो खिंजीर और बंदर नहीं बने, जो भी इन ज़वात मुक़द्दसा के मुखालिफत पे उतरता है वो या खिंजीर होता है या बंदर होता है। जितना भी खिंजीरों और बंदरों से बराअत का इजहार किया जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया जनाब अनीस हैदर साहब, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। समझता हूँ कि इस बात से मुझे तो जो फायदा हुआ है मेहरबानी, लेकिन और जो हमारे सामीन सुनने वाले हैं, हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो सुनने वाले हैं, उनको बहुत फायदा हुआ। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपकी खूबसूरत अंदाज में बड़ी ये बात बताइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। हमेशा हमेशा अलमादी टीवी मैं तो सुनता रहता हूँ
आपको पता भी चला होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वो मैंने पूरी रिकॉर्ड की थी और बल्कि मैंने दूसरे लोगों को बताया, तो सुनाया तो लोग बड़े हैरान होने लगे कि भाई तुम्हारे आलम दीन तो माशाल्लाह बहुत ही इल्म रखते हैं। अल्लाह का लाख क्या कहने उनके, बड़ी बात। आप कभी आप उन लोगों तो आपको अंदाजा हो कि माशाल्लाह कितना इल्म है इनके। अल्लाह अशरफ भाई के दर्जात भी बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में अशरफ रिजवी को जगह दे। और आज हमें अभी अभी थोड़ी देर पहले साईं जरदारी साहब ने कॉल की थी, हमजा जरदारी ने, जो नवाब शाह वाले हैं, उन्होंने अभी हमें थोड़ी देर पहले कॉल की थी। उन्होंने फरमाया कि उनकी वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई हैं, राजील खातून जरदारी बिनते अली बख्श जरदारी। उन्होंने या अली मदद भी कहा है और उन्होंने नाज़रीन नाज़रात से गुजारिश भी की है कि राजील खातून जरदारी बिनते अली बख्श जरदारी के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे और खुदा आपको जज़ाए खैर दे। अनीस हैदर साहब, इसी तरह आप हक़ का अलम भी बुलंद रखें और कदरदानी करते रहें। अल्लाह ताला हमारे तमाम इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया को भी, हमारी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद को भी जज़ाए खैर दे और उनको हिदायत भी करे कि वो अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाएं और रिसर्च वर्क को आगे ले आएँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये थे हमारे अनीस हैदर साहब, माशाल्लाह परमानेंट हमारे ये नाज़िर हैं, व्यूअर हैं, और मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है कि लोग माशाल्लाह अलमहदी टीवी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हमारी तवक्को से भी ज़्यादा अलमहदी टीवी देखा जा रहा है। नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होने को है। नोट कर लीजिए, कल सुबह के वक्त इंशाअल्लाह 5:30 बजे सखावतुल कुरान नंबर 14 न्यूयॉर्क के स्टूडियो से आएगा, ज़रूर उसे वॉच करें। आज 13 नंबर आया था, सैटरडे और संडे को हम ये प्रोग्राम करते हैं। इंशाअल्लाह कल संडे के दिन 5:30 बजे से लेकर 6:15 बजे तक हमारे लाइव सखावतुल कुरान नंबर 14 को देखना ना भूलिएगा। फिर इंशाअल्लाह कल ही इतवार के दिन 2 से 3 बजे तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शरीयत ऑनलाइन के उन्वान पर प्रोफेसर राजा हसन रज़ा एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें मैं शामिल हूँगा और मैं सवालों के जवाब दूँगा। जो शरई मसाइल हैं, हलाल हराम, तहारत, नजासत वगैरह के, उन पर सेर हासिल गुफ्तगू के लिए बहुत सारे भाई बहनों को हम देखते हैं वुज़ू गलत है उनका, अज़ान इक़ामत गलत है, क़राअत गलत है, नजिस पैचों के साथ वो सेंटर में आ रहे हैं, लेदर जैकेट्स पहने हुए हैं, सारा लिबास नजिस हो रहा है, वगैरह वगैरह। हलाल हराम में तमीज़ कम होती जा रही है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह एवरी संडे 2 बजे हमारा ये प्रोग्राम भी आएगा और 4 से 7 बजे इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू का तजवीद और बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का जश्न इंग्लिश और उर्दू में होगा। इसे लाइव नशर किया जाएगा। आप कल का दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, सुबह के वक्त भी, फिर दोपहर को 2 बजे से 3 तक और फिर 4 से 7 तक आप देख सकेंगे। और आज का जो जश्न अतिया ज़ैदी की तरफ से अल कुरान सेंटर में होगा, इसे कल 8 बजे इंशाअल्लाह नशर किया जाएगा। तमाम शुआरा जो पढ़ेंगे उनके पढ़ाई को भी और मौलाना की तकरीर को भी बाकायदा कल नशर किया जाएगा। आप हजरात व ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ, $1 पर डे की मेंबरशिप आप ज़रूर लें, पहलू तही न करें। $1 कुछ नहीं, $30 महीने के कुछ नहीं है, मगर हमारा बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। आपने देखा कि अलमहदी टीवी बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद के मकतब की तर्जुमानी कर रहा है। बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में अब तक 3 प्रोग्राम विलादत के हवाले से हम कर चुके हैं। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ शागिर्द, मेरे कुछ अजीज़ इससे पहले भी प्रोग्राम करते रहे और मैं तमाम उलमा को दावत दूंगा, तमाम अंजुमनों को दावत दूंगा। ये टेलीविज़न आपका है, चैनल आपका है, इसमें आइए, जो प्रोग्राम आप करना चाहें आप करें। 2 किताबों का तारुफ कराना चाहता हूँ। एक का पिछले प्रोग्राम में कराया था, एक ये किताब है इअलमू अन्नी फातिमा।
اس کتاب کی 10 جلدیں ہیں اور کوئی جلد بھی 700 پلس صفحات سے کم نہیں، 750 759 760 صفحات سے کم نہیں۔ ہمارے معاصر عالم علامہ عبدالحمید مہاجر نے، جو میرے دوست بھی ہیں، عرب کی دنیا کے سب سے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے خود مجھے بتایا تھا بی بی زینب کے حرم میں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھ لی تو میں نے بی بی سے توسل کیا کہ اس کا نام کیا رکھوں، تو روشن دان سے آواز آئی بی بی کی کہ مہاجر اس کا نام رکھو اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ۔ اس کتاب کا یہ عربی میں ہے، اس کا خلاصہ میں نے الحمدللہ کر لیا ہے۔ کوئی اگر بھائی بہن بی بی پاک کے بارے میں اس کتاب کا خلاصہ، الفاطمہ من المہد الی اللحد کا خلاصہ، الفاطمہ من التولد الی الاستشہاد کا خلاصہ، بحر الانوار کا، یہ میں نے تمام کتابوں کا خلاصہ 786 صفحات میں کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی بھائی بہن اس کتاب کو چھپوانا چاہیں تو یہ کتاب اشاعت کے لیے موجود ہے۔ ایک کتاب اور ہے جسے احمد خلیل جمعہ نے لکھا ہے، یہ اہل سنت سے، مبشراتم نساء مبشراتم بالجنہ، وہ عورتیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے اس عالم اہل سنت نے بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت اور بزرگواری کے بارے میں۔ ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، انشاءاللہ منڈے سے پھر آپ کی خدمت میں اور پروگرامز کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ المہدی ٹی وی واچ کرتے رہیں، اس سے مالی معاملت کرتے رہیں، یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کے ایام میں بی بی پاک کے خاندان کے ساتھ وفا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، التماس سے دعا کے ساتھ، آپ کا خادم المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو سے آج اس پروگرام صراط مستقیم نمبر 9 سے، جو بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تھا، اجازت چاہتا ہے۔ ادام اللہ عزکم، اسعد اللہ ایامکم سعیدہ، عیدکم مبارک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔